السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب حاجی کیمپ پر عرصہ دراز سے لگی ریڑیاں ہٹا دی گئیں، اضافی قبضہ بھی سڑک سے ختم کرا دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں محمد علی سے۔ جی محمد علی، بتائیے۔ جی، شہر لاہور کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے تجاوزات کا جو آپریشن تھا، آج دوسرا دن ہے، کیونکہ جو 48 گھنٹے قبل یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لاہور کی سڑکوں کو تجاوزات سے، ریڈی مافیا سے پاک کرنا، اس حوالے سے تاحال حکومت کی جانب سے کوئی متبادل جگہ تو ان کو نہیں دی گئی، لیکن جو تجاوزات تھیں حکومت کے کاغذوں میں، سڑک سے 5 فٹ سے آگے جتنی بھی تجاوزات تھیں وہ ہٹا دی گئی ہیں۔ میرا کیمرہ فیصلہ آپ کو دکھائے گا، یہ وہ پورا بلاک ہے جو جوتیوں میں سٹال لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اندر لوگوں نے رینٹ پہ دکانیں لی ہوئی ہیں، اس کا کرایہ باقاعدہ طور پہ پرائیویٹ مالک ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ دوسری جانب اس سے آگے جو جگہ تھی، یہ میں تقریباً یہ سڑک 60 فٹ کے قریب ہے، 60 فٹ سے زیادہ لگ رہی ہے۔ حکومت نے یہ کیا کہ آج ضلعی حکومت کی جانب سے فیصلہ آپ کو دکھا رہا ہے، راؤنڈ اباؤٹ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں جو یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں۔ یہاں پہ آج انہوں نے بلڈوزر کے ساتھ تمام ڈیمالشنگ کی ہے، تمام تجاوزات کو ختم کیا ہے، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ 5 فٹ سے آگے تجاوزات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر فیصلہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ دکھائے گا، اس سائڈ پہ بھی بہت زیادہ انہوں نے جتنے بھی تھڑے تھے اضافی دکانوں کے آگے جتنی بھی اضافی جو تعمیرات تھیں حکومت کی مد میں یہ غیر قانونی ہے، اس سلسلے میں انہوں نے آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے حاجی کیمپ کو کلیئر کر دیا تاکہ ٹریفک کی بحالی رہے۔ لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، پوچھ بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ دکاندار ہیں؟ جی ہاں کب سے یہاں پہ ریڈی؟ جی، بہت عرصے سے ہم یہاں پہ ہیں، موجود ہیں۔ یہ پٹھان لوگوں نے اس جگہ کو آباد کیا۔ ہم سڑک سے تقریباً کوئی 15 گز پیچھے ہے، سڑک سے ہم 15 گز پیچھے جہاں اس نے کارروائی کیا، اور یہ یہاں پہ یہ لوگ جو آتے ہیں، یہاں پہ غریب لوگ آتے ہیں جو لنڈا خریدتے ہیں، جو چیزیں خریدتے ہیں، جو بازار میں ملتے ہیں 2000 کا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں یہاں پہ جب آیا ہوں بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ تمام وہ لڑکے ہیں جو یہاں پہ ریڑیاں لگاتے ہیں، اپنا روزگار کماتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ متبادل بندوبست کیا جائے۔ اگر یہ کاروبار کریں گے تو جرائم سے دور رہیں گے، لیکن اگر یہ کاروبار نہیں کریں گے تو جرائم کی ریشو بھی بڑھے گی۔ اس میں حکومت کو چاہیے کہ ایک مناسب بندوبست جگہ کا کر کے ان کو مناسب جگہ دی جائے، جہاں سے لوگ جو ان سے غریب لوگ جو ان سے وہ شاپنگ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد علی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کمزور طبقات کی امداد و بحالی کے موضوع پر نجی تنظیم کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر کی سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ 43,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز کو گریڈ 5 سے 8 میں ترقی دی گئی ہے۔ نگران حکومت بہبود آبادی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ سجاد حسین، اس بارے میں آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، ڈاکٹر جمال ناصر صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ سیو دا چلڈرن 40 سال سے پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں کام کر رہی ہے۔ کمزور طبقات کے لیے سیو دا چلڈرن جو تنظیم ہے اس کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ پنجاب کے دیہات میں 500 ایمبولینس گاڑیاں حاملہ خواتین اور بچوں اور معذور افراد کو مراکز صحت تک پک اینڈ ڈراپ کی سروس دیے جا رہے ہیں۔ حاملہ خواتین اور ان کے اہل خانہ ٹول فری جو ہے 1034 پر کال کر کے مفت پک اینڈ ڈراپ کی سروس حاصل کر سکتے ہیں۔ ہیضہ اور نمونیا میں مبتلا ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد حسین۔ ایس ایس پی مستنصر فیروز COO سیف سٹیز اتھارٹی لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مستنصر فیروز اس سے پہلے CTO لاہور تعینات ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر حسین، بتائیے گا۔ جی بالکل، SSP مستنصر فیروز کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ SSP مستنصر فیروز کو COO سیف سٹی اتھارٹی لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ CEO کی جو سیٹ تھی وہ کافی عرصے سے خالی تھی، جس کے بعد اب جو ہے وہ پنجاب حکومت نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ MD سیف سٹی SN یونس نے جو ہے وہ SSP مستنصر فیروز کی خدمات پنجاب حکومت سے مانگی تھیں، جس کی طرف سے IG پنجاب نے 3 افسران کے نام دیے تھے، 3 انٹرویو ہوئے، جس کے بعد جو ہے وہ مستنصر فیروز کو جو ہے وہ ان کو چنا گیا ہے MD CEO سیف سٹی اتھارٹی۔ اب جو ہے وہ ان کو CEO سیف سٹی اتھارٹی تعینات کر دیا گیا۔ مستنصر فیروز اس سے پہلے جو ہے وہ CTO لاہور بھی تعینات رہ چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سیف سٹی میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ دوسری دفعہ وہ سیف سٹی اتھارٹی میں جو ہے وہ بطور CEO تعینات ہوئے ہیں، اور مستنصر فیروز جو ہے وہ کل اپنے عہدے کا جو چارج ہے وہ سنبھال لیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدثر حسین۔
और अभी आपको बताएं कि एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रोज़ाना की बुनियाद पर जारी मॉनिटरिंग से रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा। गुलबर्ग टाउन से 9.8 मिलियन, इलामा इकबाल टाउन से 10.39 मिलियन रुपए रिकवर किए गए हैं। तमाम टाउन्स में डिफ़ॉल्ट सारफीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। वासा सारफीन की शिकायत का अजाला उनके घर की दहलीज पर मुमकिन बनाया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैनुल आबदीन, इजलास का अहवाल बताइए। ये वासा के रेवेन्यू में इजाफे के लिए रोजाना की बुनियाद पर डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ताहम इसी हवाले से जो वासा इंसामिया है वो मुतलका डायरेक्टर्स और रेवेन्यू डायरेक्टोरेट से फॉलो अप मीटिंग्स भी कर रहे हैं। तो इसी तनाजुर में एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ये ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर जो रेवेन्यू प्रोग्रेस थी उसको रिव्यू किया गया। जबकि इस इजलास में ये चीज़ सामने आई कि रोजाना की बुनियाद पर जारी मॉनिटरिंग से रेवेन्यू कलेक्शन में बेहतरी आई है। एमडी वासा गुफरान अहमद को 20 दिसंबर तक की रेवेन्यू प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि गंजबख्श टाउन से 5.18 मिलियन, गुलबर्ग टाउन से 9.08 मिलियन, जबकि अलामा इकबाल टाउन से 10.39 मिलियन रुपए रिकवर किए गए हैं। इसी तरह अजीज भट्टी और वाघा टाउन में डिफॉल्टर से 6.68 मिलियन, जुबली टाउन से 17.81, जबकि निश्ता टाउन से 15.98 मिलियन रुपए रिकवर किए गए। इस मौका पर एमडी वासा ने ये अहकाम जारी किए कि तमाम टाउन्स में डिफॉल्टर सारफीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएं, जबकि जो वासा के सारफीन हैं इनकी शिकायत का अजाला इनके घर पर मुमकिन बनाया जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि सियासी सरगर्मियों में तेज़ी। कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशस्तों पर कागजात की तफसीलात जारी। कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर 48 कागजात जमा। सूबाई असम्बली की नशस्तों पर 179 ख़वातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। अक़लियतों की नशस्तों पर 46 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है। कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशस्तों पर कागजात की तफसीलात जारी कर दी गई। कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर 48 कागजात जमा करवाए गए हैं। सूबाई असम्बली की नशस्तों पर 179 ख़वातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि अक़लियतों की नशस्तों पर 46 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो ने NA 128 से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। अदील खुला मुहय्युद्दीन ने भी NA 128 से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। मोहम्मद यासीन, आगाह कीजिएगा। ये पीपल्स पार्टी की तरफ से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का कभी इम्कान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मियां मिसबाह रहमान ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो के NA 128 से लाहौर से कागजात नामजदगी मैंने खुद वसूल पा लिए हैं और वो कल जमा करा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के नीचे 128 की जो जैली PT 169 में मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अदील गुलाम मुहय्युद्दीन ने भी इसी हल्का 128 से ही कागजात नामजदगी वसूल पा लिए हैं, जबकि उनके जो वालिद हैं हाफिज गुलाम मुहय्युद्दीन PP 170 से कागजात नामजदगी वसूल कर चुके हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल ने NA 127 से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं, जो कल जमा कराएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन। आम इंतखाबात की गहमा गहमी में तेज़ी। कागजात नामजदगी जमा कराने के दूसरे रोज़ मरियम नवाज, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद और सबा सादिक ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। लाहौर से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी PTI और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुमकिना उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला जारी रहा। दूसरे रोज मरियम नवाज ने NA 130 से कागजात नामजदगी हासिल किए। लीगी रहनुमा तहमीना दौलताना, सबा सादिक, उज़मा कारदार ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसी तरह जमात इस्लामी की लियाकत बलोच और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शोएब सिद्दीकी और मुराद राज समेत दीगर ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। खुदा की मर्जी हो कि वो अगर मैं पार्टी में टिकट मिले ना मिले फिर भी मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ और मरीम नवाज के साथ रहूँगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माइनॉरिटी विंग ओवरसीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आज मैं
सूबाई असम्बली के लिए यहाँ पेपर अपने सबमिट करवाने आया हूँ और खुदावंद के फजल से कल मैं नेशनल असम्बली के लिए इस्लामाबाद जाऊँगा। जी मैं मिनॉरिटी सीट से मैंने कागज़ जमा करवाए हैं और मैं गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक़ है और मैं मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा हूँ। 2 रोज़ में लाहौर से कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हलकों पर मजमूई तौर पर 400 से जायद कागजात नामजदगी हासिल किए जा चुके हैं। 22 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं कि आइंदा आम इंतखाबात में पंजाब में कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर न्यूज़ ने डाटा हासिल कर लिया है। पंजाब में 2018 की निस्बत रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 1,16,10,582 का इजाफा हुआ है। पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद सामने आ गई। लाहौर न्यूज़ ने डाटा हासिल कर लिया। इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात के मुताबिक 2018 की निस्बत रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 1,16,10,582 का इजाफा हुआ है। पंजाब भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 7,23,10,582 हो गई। मर्द वोटर्स की तादाद 3,87,20,067 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 3,59,90,515 है। दस्तावेजात के मुताबिक 2018 के मुकाबले में खवातीन वोटर्स की तादाद में 65,98,132 वोटर्स का इजाफा हुआ, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद में 50,39,670 वोटर्स का इजाफा हुआ है। पंजाब के अजला में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद डिस्ट्रिक्ट लाहौर की है। जिला लाहौर में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 67,24,633 है। वोटर्स के एतबार से मरी सबसे छोटा जिला है, जहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 2,90,931 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात इन वोटर्स लिस्टों के मुताबिक होंगे और इलेक्शन से कब लिस्टों में रद्दबदल नहीं हो सकेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद खान की जानिब से बैरून मुल्क से आए सिख बरादरी के एजाज़ में इशाइया। राना मशहूद अहमद ने बतौर वज़ीर टूरिज़म सिखों के लिए बहुत काम किया, हमेशा इज़्ज़त दी और सिख बरादरी ने भी हमेशा प्यार और इज़्ज़त दी है। तफसीलात जान लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन, बताइए। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मशहूद अहमद खान की जानिब से बैरून मुल्क से आए सिखों के एजाज़ में अशाइये का एहतमाम किया गया। इसमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत दीगर ममालिक से मारूफ बिजनेस और समाजी और सियासी सिख शख्सियात जो पाकिस्तान के दौरे पर हैं वो मौजूद थे। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा जिसमें बदर शहबाज, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। सिखों ने ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि हमारा दिलो जान पाकिस्तान में है। पाकिस्तानियों ने ननकाना, गुरुद्वारा और करतारपुर को जो है वो संभाल कर इज्जत देकर रखा और हमें इज्जत और प्यार देकर सारी जिंदगी के लिए खरीद लिया। उन्होंने कहा कि राना मशहूद अहमद खान ने बतौर वजीर टूरिज्म सिखों के लिए बहुत काम किया। राना मशहूद अहमद खान ने हमेशा पाकिस्तान आमद पर बहुत प्यार दिया। पंजाबी कल्चर को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम को सराहते हैं। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि नून लीग मंशूर कमेटी में अक़लीतों के लिए खसूसी इक़दाम पर फोकस कर रही है। सिख हमारे दिलों के बहुत करीब है, हमेशा इज्जत दी और सिखों ने भी हमें बहुत प्यार और इज्जत दी। सिखों ने कहा कि पाकिस्तान आकर वापस जाने को दिल नहीं करता। सुना था पाकिस्तानी खवातीन सिखों से प्यार नहीं करती, लेकिन वो हमारे लिए पाकिस्तान में हाल लेकर खड़ी थी और हमें बहुत इज्जत और तकरीम दी। सिखों ने कहा कि पाकिस्तान में आकर हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर हैं और बिछड़े हुए थे, जो अब मिलकर हमें हमारी उम्मीद और हमारी जो एक मुराद थी वो पूरी हुई। उन्होंने कहा कि करतारपुर का प्रोजेक्ट शुरू करके हमारे दिल जीत लिए और हमें मजबूर कर दिया कि हम पाकिस्तान से मज़ीद मोहब्बत और लगाव रखें। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि राना मशहूद अहमद खान और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में सिखों के लिए भरपूर इक़दाम किए, किसी सूरत जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। कि जिन्ना हस्पताल में हादसे का शिकार मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जिन्ना हस्पताल की इमरजेंसी में टेटनस का इंजेक्शन नायाब हो गया। इंजेक्शन नायाब होने के बाद मरीजों को बगैर इंजेक्शन घर भेजा जाने लगा है। मेडिकल माहिरीन के मुताबिक टेटनस के वायरस पर काबू ना पाने से मरीजों की जान जा सकती है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद हुसैन से तफसीलात जान लेते हैं। जी सजाद, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर जनाह हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर मौजूद हैं और एक हफ्ता हो गया है जो हादसे का शिकार लोग इमरजेंसी के अंदर आते हैं उनके लिए जो है वो टेटनस का इंजेक्शन मौजूद नहीं है। जख्म आने से रगड़
पड़ने से जो है वो टेटनस का इंजेक्शन जो है वो हादसे की शक्ल में फौरी लगाया जाता है, लेकिन जना हॉस्पिटल लाहौर की इमरजेंसी के अंदर एक हफ्ता से जो है वो टेटनस का इंजेक्शन जो है नायाब है। मेडिकल माहिरीन का कहना है कि टेटनस का इंजेक्शन नायाब होना जो है वो बहुत बुरा अमल है, क्योंकि टेटनस का इंजेक्शन अगर हादसे की शक्ल में ना लगाया जाए तो टेटनस इतना खतरनाक बैक्टीरिया है कि उसके कुछ दिन बाद जो है वो मरीज की हालत जो है बिगड़ जाती है, मरीज का मुंह बंद होना शुरू हो जाता है, जिस्म अकड़ जाता है, मरीज वेंटिलेटर पर मुंतकिल हो जाता है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि टेटनस का बैक्टीरिया जिसको लग जाए उसका जिंदा रहना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। इस हवाले से MS जना हॉस्पिटल डॉक्टर याह्या सुल्तान से रब्ता किया गया कि टेटनस का इंजेक्शन जो है वो शॉर्ट होने की वजह क्या है, तो उनका कहना था कि इमरजेंसी में टेटनस के इंजेक्शन की किल्लत तो है, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो है वो 70 के करीब जो है वो इंजेक्शन मौजूद हैं, जबकि लाहौर न्यूज़ के पास प्रिस्क्रिप्शन मौजूद है जिस पे बाकायदा जो है बाहर से इंजेक्शन लाने पर जो है वो मरीजों को मजबूर किया जा रहा है। इस हवाले से MS जना अस्पताल डॉक्टर याह्या सुल्तान का कहना है कि डॉक्टर जो हैं वो गलती से जो है वो बाहर मेडिकल स्टोर पे मरीजों को भेज रहे हैं, जबकि हमारे पास जो है वो 70 के करीब जो है वो इंजेक्शन इमरजेंसी में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सजाद। और अभी आपको बताएं कि क्रिसमस की मुनासिबत से अलहमरा हॉल में सजी एक तकरीब, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई। सुहेल कैसर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। अलहमरा हॉल लाहौर में क्रिसमस की मुनासिबत से सजने वाली तकरीब ने खूब रंग जमाया। रंगारंग तकरीब में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हुए। मुक़र्रिरीन ने क्रिसमस के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया और इसे अमन का त्यौहार करार दिया। इस मौके पर शुरका का कहना था कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर हम सबको दुआ करनी चाहिए। क्रिसमस के मौके पर इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंद होने की भी दुआ करनी चाहिए। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि हम सब मिलकर ईद वलादतुल मसीह की खुशियों में शरीक हैं और पाकिस्तान एक खूबसूरत खुदावंद ने हमें मुल्क दिया है जिसमें हम सब मिलकर अपने मजहबी त्योहारों को मनाते हैं। आज जब हम क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि हम सबको बहुत दुआ की ज़रूरत है। दुआ की ज़रूरत है ताकि खुदा हमारे मुल्क को और ज़्यादा प्यार और मोहब्बत का फजल दे। क्रिसमस के मौका पर भी सब लोग दुआ करें, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग बंद हो, अमन और सलामती हो। शुरकाए तकरीब की तरफ से करार दिया गया कि मुल्क में मजहबी हमांगी की फ़ज़ा को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए बाहमी मेल मुलाकात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर उश्र, ज़कात और औक़ाफ़ सैयद अज़फ़र अली नासिर ने मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वालों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश के मौके की मुनासिबत से क्रिसमस का त्यौहार पूरी दुनिया की तरह मुल्क पाकिस्तान में भी खूब जोश खरोश और अक़ीदत एहतराम से मनाया जाता है और मैं आज क्रिसमस पर अपनी मसीही बरादरी, अपने भाइयों को, बहनों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीब में सेक्रेटरी इंसानी हुकूक डॉक्टर मोहम्मद शुएब अकबर, डिप्टी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक रिजवाना नवीद, प्रोफेसर कल्याण सिंह कल्याण और यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन से शाहिद रहमत ने भी खुसूसी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर क्रिसमस का केक काटा गया और गीत गाए गए। साथी रिपोर्टर सामिया सईद और कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ घिराव के केस में पेशरफ्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए 9 जनवरी को तलब कर लिया। सैफुल मुलूक खोकर ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून इस बार इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। नुमान नूर अफाल बता रहे हैं। पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ घिराव के केस में पेशरफ्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने केस पर समाअत की। मुलजिमान के वकला ने बरियत की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। सैफुल मलूक खोखर, मलिक अफजल खोखर, इरफान शफी खोखर, मलिक शफी खोखर समेत दीगर अदालत में पेश हुए और अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए 9 जनवरी को तलब कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान एशियन टाइगर्स बनने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के वर्करों ने और पाकिस्तानी वाम ने एक अल्लाह की ज़ात के बाद एक ही उम्मीद लगाई हुई जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो 9 फरवरी होगी जो पहला दिन पाकिस्तान की कामयाबी का होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान
जहाँ रुका था वहाँ से इंशाल्लाह आगाज होगा। थाना नवाब टाउन पुलिस ने 2018 में मुलजिमान के खिलाफ तशद्दुद और जलाओ गिराव का मुकदमा दर्ज किया था। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कासिम सूरी की हिफाजती ज़मानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। पंजाब हुकूमत ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात अदालत को फराहम कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू कासिम सूरी का मौक़िफ़ था कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ बुनियादी आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करके मुकदमात दर्ज किए गए। अदालत इन मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे, इसके अलावा नामालूम मुकदमात और इंक्वायरियों में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म भी दे। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत के वकील ने मुकदमात की तफसीलात फराहम कर दी। अदालत ने कासिम सूरी की दरख्वास्त निपटा दी, ताहम हिफाजती ज़मानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बढ़ती महंगाई, अशिया ज़रूरियाँ निकलने लगी। शहरियों के लिए ख़रीदारी मुश्किल से मुश्किल तर हो गई है। ब्रायलर के दाम 4 रुपये बढ़ने से कीमत 467 रुपये किलो हो गई। 5 सब्जियों और 2 फलों की कीमत में भी इजाफा हो गया है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। महंगाई के साए छट न सके, ब्रायलर की कीमत को फिर पर लग गए। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 4 रुपए किलो इजाफा। मुर्गी का गोश्त 463 रुपए से महंगा होकर 467 रुपए किलो मुकर्रर। 3 दिनों में ब्रायलर 33 रुपए किलो तक महंगा हो गया। अंडों की सरकारी कीमत 359 रुपए दर्जन मुकर्रर। शहरियों को फी दर्जन अंडे 400 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियों फलों के दाम हुए बेलगाम। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के दाम बढ़ गए। शिमला मिर्च 220 रुपए, मटर 200 रुपए, अरबी 160 रुपए किलो बिकने लगी। करेले रेट लिस्ट में 95 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 180 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। लहसुन 850 रुपए, अदरक 750, प्याज 200 रुपए, टमाटर 150 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। शहरी कहते हैं सब्जियों और फलों की खरीदारी मुश्किल हो चुकी और ब्रायलर भी दोबारा महंगा होने लगा। यहाँ पर महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, मुर्गी का रेट देख लें, सब्जियों का रेट देख लें, इतना ज्यादा हो चुका है कि गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। सब्जी तो महंगी है, फल भी महंगा है। 200 रुपये किलो प्याज है, 120 रुपये किलो टमाटर है, फिर आलू 100 रुपये किलो है। ये सब कुछ ऐसे महंगा है। सरकारी रेट लिस्ट में 2 फल भी महंगे हो गए। केला दर्जावल 180 रुपए फी दर्जन फरोख्त, खजूर ईरानी 600 रुपए, अंगूर 580 रुपए, सेब 380 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन की जानिब से रेलवे हेडक्वार्टर में मजदूर कन्वेंशन का इनेकाद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खसूसी शिरकत की। सिराजुल हक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI ने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। तफसीलात ज़ैन अली की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन की जानब से रेलवे हेडक्वार्टर में मजदूर कन्वेंशन। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खुसूसी शिरकत की। कन्वेंशन में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम, मरकजी चेयरमैन रेलवे प्रेम यूनियन ज़ियाउद्दीन अंसारी, मरकजी सदर शेख अनवर समेत दीगर ने शिरकत की। मजदूर कन्वेंशन से खिताब में मरकजी चेयरमैन प्रेम यूनियन ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि गुज़श्ता 1.5 साल से रेलवे मुलाजिम अपनी तनख्वाहों के लिए मुजाहरे कर रहे हैं। मुलाजिमीन बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। गुज़श्ता 1.5 साल से आप अपने अपने मुकामात पर अपनी तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी ना होने की बुनियाद पर मुजाहरे मुसलसल कर रहे हैं कि हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, इस बात का हक रखते हैं कि हमारा पसीना खुश्क होने से पहले हमें मजदूरी मिले। मेरा मजदूर अपने बच्चों का पेट मुश्किल से पाल रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई अदारा ऐसा नहीं जो मजदूर के बारे में सोच रहा हो। हमारी असेंबलियों और सेनेट में हर जगह जागीर तार बैठा है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा इदारा नहीं है जो मजदूर के हवाले से कोई अच्छा प्लानिंग कर ले, आपके मुस्तकबिल के हवाले से सोचे, आपके बच्चों के हवाले से सोचे, आपके रिहायशी मकानात के हवाले से सोचे। हमारे कौमी असम्बली में आपको 100% जागीरदार नजर आएंगे। गरीब के बेटे के बारे में, गरीब की बीवी के बारे में, गरीब के मुस्तकबिल के बारे में पाकिस्तान में हर इदारा खामोश है। सिराजुल हक ने कन्वेंशन में मुतालबा किया कि रेलवे मजदूर के अखराजात वजारत खजाना उठाए और रेलवे मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 22 दिसंबर साल का छोटा तरीन दिन और दिसंबर की 23वीं रात तवील तरीन होगी। 23 दिसंबर से दिन की तवालत में इजाफा शुरू हो जाएगा। 21 जून तक 45 सेकंड के हिसाब से दिन बड़ा होता जाएगा। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता 6 माह यानी 22 जून से पाकिस्तान समेत शुमाली निसफ कुर्रे में दिन के दौरानिये में मुसलसल कमी आ रही थी। दिन के औकात में कमी का ये अमल 22 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएगा, जब दिन का दौरानिया सिर्फ 10 घंटों पर मुश्तमिल होगा, जबकि रात पूरे साल की तवील तरीन रात होगी। 22 दिसंबर को सूरज 6:59 पर तुलू और 5:10 पर गुरूब होगा। 23 दिसंबर से मामला उलट हो जाएगा, यानी दिन का दौरानिया बतदरीज बढ़ने लगेगा और रात के औकात में कमी आती जाएगी। इस अमल के दौरान 21 सितंबर और 22 मार्च 2024 को दिन और रात का दौरानिया बराबर होगा। 22 दिसंबर से 21 जून तक 45 सेकंड के हिसाब से दिन बड़ा होता जाएगा। दिन और रात के दौरानिया का ये चक्कर अज़ल से इसी तरह चला आ रहा है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़।